Hello everyone, how are you? In last video we have seen question number 2 in graph book. Now we will start question number 1 which is not given in graph book. So we have seen here. Write the answer of each of the following questions. What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Friends, I explain in theory this. Horizontal line, the horizontal line says x-axis and the vertical line says y-axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Each part is called quadrant. Write the name of the point where these two lines intersect. These two lines intersect. The point is called origin. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं. First, the horizontal line says x-axis, the vertical line says y-axis. Each part is called the quadrant, and third number में आंसर आएगा origin. Now we will start in graph book. In last video we have seen question number 3 in illustration. Now we will start question number 4. Plot the following ordered pairs xy of numbers as point in the Cartesian plane. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit on the axis. Friends, here we draw two lines. The horizontal line is x-axis, the vertical line is y-axis. Here we plot this all points. First point is x coordinate -3, y coordinate 7. X coordinate -3, -1, -2, -3 and y coordinate 7. Our point is here. Take it easy. The point is -3, 7. Okay. Next point is 0. X coordinate is 0 and y coordinate is -3.5. फ्रेंड्स, मैंने आपको आगे भी बताया था कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. y कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस यानी नेगेटिव y एक्सिस पे जाना पड़ेगा आपको. -1, -2, -3 एंड -3.5 लेना है तो 3 एंड 4 दोनों के बिटवीन में लेना पड़ेगा आपको 3. तो दोनों के बिटवीन में यहाँ पे मैं बना लेती हूँ. तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 -3.5. नेक्स्ट -1 -3. x कोऑर्डिनेट -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3. -1, -3. x कोऑर्डिनेट x coordinate 4, y coordinate 4, x coordinate 4 and y coordinate is also positive, therefore our point lies in first quadrant. Very good. Okay, clear it. X coordinate is 2 and y coordinate is -3. X coordinate is 2, 1, 2 and the y coordinate is -3. The point is 2, -3. Clear it? Now let's start exercise 3.3. In which quadrant or on which axis does each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lies?
वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स गिवन है उसको लिखना है, उसकी पोजीशन कहाँ पे, मतलब वो कौन सी एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या एक्स एक्सिस पे है या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। साथ में उसको प्लॉट करके दिखाना भी है कि आपने जो लिखा है वो सही है। तो पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर आपके दोनों पॉइंट पॉजिटिव है तो लिख दो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो लिख दो आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव है तो लिख दो फ्रेंड्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आपका एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो आपका क्वाड्रेंट होगा फ्रेंड्स पॉइंट का फोर्थ। क्लियर? तो बस यहाँ पे देख के लिखना है -2 -4, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। So the position of the point lies in the second quadrant. Positive, negative. In fourth quadrant lies in the -1 0. Here friends देखो, y coordinate of the point is 0, therefore the point is on x axis, but our x coordinate is also negative, therefore the point -1 0 lies on the negative x axis. Next 1 2, both coordinates of the point are positive, therefore the point lies in the first quadrant. Next, both negative, therefore the point lies in the third quadrant. Now let's plot the points. -2 4 in second quadrant, -2 and 4. -2, 4. 3 -1, x coordinate 3 and y coordinate -1. फ्रेंड्स पॉइंट कहाँ पे है? सही बोल रही हो, कहाँ पे है भाई? इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में? राइट। -1 0, x coordinate -1, therefore the point lies in the negative x axis. देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा भी है मैंने नेगेटिव x axis। 1 2, the both points are 1 2, x coordinate 1 and the y coordinate is 2 by 2, 1 2. The point lies in the first quadrant. सही लिखा है भाई मैंने तो। -3 -5, x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट आ गया भाई -5। Look, our point lies in या थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी सही लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप भी देख के सही लिखना। ओके फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3 का प्लॉट द पॉइंट्स x y। डिट्टो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, यहाँ पे भी आपको प्लॉट ही करना है सुटेबल यूनिट्स लेके। तो चलो हम प्लॉट कर लेते हैं। x -2 y 8, x में जाना है -2 और y में जाना है 8। ये रहा आपका पॉइंट -2 8, x -1 और y 7, x -1 और y 7। ये यहाँ पे भी ऊपर जाना पड़ेगा भाई। तो चलो मेरे साथ करते जाओ। -1 7, वेरी गुड।
नेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1.25। फ्रेंड्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 याद करो, मम्मी ने क्या बताया था आगे। हाँ सही बोल रही हो, द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस पर। कौन सी? बोलो बोलो बोलो। हाँ मुझे सुनाई दिया, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। देखिए यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे बनाती हूँ। फ्रेंड्स डेफिनेटली ये पॉइंट 1 और 2 के बिटवीन में आएगा, 1.25 है तो 1 और 2 दोनों के बिटवीन में कितनी लाइन है भाई? 1 2 मतलब 5 बॉक्सेस हैं, तो एक लाइन के बराबर 2 पॉइंट होंगे 0.2, तो 1 के बाद 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और आ गया 2, तो 1.2 फर्स्ट लाइन बराबर 1.2 इन 1.25 चाहिए, तो उससे नीचे कुछ बना लो आप यहाँ पे। देखो मैं पेन से बना रही हूँ, ये रहा आपका पॉइंट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैग्नीफाइड ग्लास लेके देख लो भाई, दिखेगा तो सही, मैंने बनाया है तो दिखेगा ही। ये हो गया आपका पॉइंट 0, -1.25। नेक्स्ट है पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 3। एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3। फ्रेंड्स आई एम रियली मिसिंग ऑल ऑफ यू। ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 3। एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट -1, एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट -1। एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट -1। तो ये पूरा चैप्टर आपकी क्राफ्ट बुक में फिनिश कर लेना। होप सो आपने कर ही लिया होगा। Thank you so much for watching my video and bye bye.